22 دسمبر 2022 عیسوی بمتاب کے 27 جمادی الاول 1444 ہجری بروز جمعرات آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن حیا جاوید کے ساتھ۔ تو آئے ڈالتے ہیں آج کی خبروں پہ ایک نظر۔ G20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے وادی کشمیر تیار۔ تاریخ میں پہلی بار جموں کشمیر میں اس طرح کا کوئی بین الاقوامی اجلاس منعقد ہوگا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بھارت چین معاملے پر شورغل، لوک سبھا کی کارروائی ملتوی۔ ہندوستان کو سپر پاور بننے میں حال رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ سپر پاور بننے کی دوڑ میں پڑوسی ممالک کی رکاوٹوں کے خلاف کارروائی ہوگی، فضائیہ سربراہ۔ پولیس نے حزب کے 5 معاونین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ گرفتار شدگان سے بڑی مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ مشرقی لداخ میں فوجی جماؤ کم کرنے پر ہند و چین کا اتفاق۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے مابین بات چیت ہوئی اور نادم باغچی۔ انتظامیہ جموں کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ عوام کو براہ راست فائدہ پہنچانے کے لیے زمینی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر مظفر شاہ نے آج ایک پریس کانفرنس میں سرحدی ضلع کپوارہ کے کنن پورہ علاقے میں ایک شہری کو دوران حراست لاپتہ کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ نئے ووٹروں کا اندراج، نئے اراضی قوانین اور ترال میں سکھوں کو دھمکی آمیز پوسٹر چسپاں کا معاملہ سرکار کو فوری طور حقائق سامنے لانے پر زور دیا کہ کون اشخاص ایسی حرکات کر کے سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان دوریاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جموں کشمیر میں ابھرے ہیں، خصوصاً ریاست میں سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت برننگ ایشو ہے وہ ہے کہ کنن پوشپورہ میں کچھ دن پہلے عبدالرشید نامی ایک شخص کو وہاں کے ایک کیمپ میں لیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی فیملی پریس انکلیو میں آئی اور وہ آج تک وہ بتا رہے ہیں کہ عبدالرشید کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ؟ کنن پوشپورہ کا دلدوز واقعہ تو سب کو پتا ہے، اسی جگہ کے پھر یہ کرنا۔ میں نے کل ہی اپنے ڈپٹی کمشنر جو کپوارہ کے ہیں ان سے یہ درخواست کی ہے، گزارش میں پھر کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ایز ڈپٹی کمشنر آپ ریسپانسبل ہیں ہر کسی اپنے ناگرک کی۔ یہ جو عبدالرشید ہے، ڈی سی صاحب یہ بتائیں، ان کی پوری فیملی یہاں واویلا کر رہی تھی، وہ عبدالرشید ہے کہاں؟ آپ ضرور لے جائیں جن کو آپ کو انٹروگیٹ کرنا ہے۔ آپ کل کو مجھے بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، پولیس لے جا سکتی ہے، پیراملٹری لے جا سکتی ہے، آرمی لے جا سکتی ہے، کیونکہ آج تو زور زبردستی کا راج ہے۔ قانون کو تو آپ نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، جمہوریت کا تو مذاق بنا دیا آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، اگر مجھ پر آپ کو شک ہے، آپ مجھے انٹروگیشن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، مگر اس کے بعد میرا تو پتا ہونا چاہیے کہ میں ہوں کہاں، ویئر ایم آئی۔ یہی آج پوری ریاست آپ سے پوچھ رہی ہے۔ گاندربل میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ہیں، انہوں نے آج ہی اپنی آفیسرز کی میٹنگ میں ان کو ہدایت دی ہیں کہ مجھے جتنے بھی یہاں پہ نان لوکلز ہیں ان کا لسٹ دیجئے اور ان سے کوشش کیجئے کہ ان کی جو بجلی کی بل ہے، صرف 6 مہینے کے بجلی کا بل لائیے۔ وہ 6 مہینے کا بجلی کا بل لا کر ان کی شاید دوبارہ رجسٹریشن کرنے کی کوشش کی جائے گی ایز ووٹر۔ ترال میں ہماری سردار بدارت کے ساتھ وہاں آج ٹی آر ایف کی طرف سے پوسٹرز چسپان کیے گئے ہیں گردوارہ میں اور ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اب پہلے کشمیری پنڈتس کیا کوشش کی ہوئی، انآئیڈینٹیفائڈ گن مین نے ان کو مار ڈالا، جس طرح
कश्मीरी मुसलमान उसमें मैक्सिमम मरे, उसी तरह हमारे पंडित भाई भी शिकार हो गए और आज तक अनआइडेंटिफाइड गनमैन का पता ही नहीं लग रहा है। सो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये दरखास्त करूंगा कि प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ये जो हो रहा है, ये बताओ आज इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि मैं रात को घर में कितना खाना खाता हूं, क्या मैंने पकाया है, सब्जी है, दाल है, आटा है, चावल है, मुर्गा है या गोश्त है, यह भी आपको पता है। तो क्या आपको यह पता नहीं है कि यह पोस्टर कौन निकाल रहा है? तराल से डेलीगेशन अभी यहां से हमसे मिलकर चली गई, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आज गए हैं। बताइए हम क्या करेंगे कि जिस तरह पंडित बरादरी को उनको मुसीबत में डाला गया, इसी तरह आज सरदार बरादरी पे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दरार पड़ जाए हमारी आपस में कम्युनिटीज में। सड़क हादसा, एक शख्स को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारकर लुक में अजल बना दिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुलाजमीन को APR जमा कराने का मशवरा दिया। APR जमा करने में नाकाम होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया। वादी के बेशतर होटलों में सयाहों की धूम, सैलानियों की आमद में इजाफा से शोबा सयाहत से वाबस्ता अफराद खुश खरम। भारत में 33 लाख से ज़्यादा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के शिकार, ख़वातीन और अतफाल तक मुकवी ग़िज़ाइयत पहुँचाने के लिए इक़दामात किए गए। मरकज़ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तर्जमान शुजात बशीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद पर तनकीद करने वाले सियासी लीडरान को आड़े हाथों लेते हुए उनके खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात की सरकार को फौरी तौर छानबीन करने पर जोर दिया। हमें नागपुर से कोई डायरेक्शंस आती है ना ही हम बी टीम है। हमने पहले दिन से बोला, जिस दिन ये पार्टी बनी है उस दिन से हमने बोला है वी आर नॉट कनेक्टेड विद बीजेपी। अगर हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह आई भी, अगर हमें कोलेशन हो नहीं भी, नॉट विद द बीजेपी। तो इनके इन बोलने से, या आमिर साहब जो भी ये बोलते रहते हैं, प्लीज अपने काम सही करें। जो भी आपके जितना भी इनके टाइम हुआ है, ये एक बंदा नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत पा रहा है, तो ये हमारे को क्यों कर रहे हैं या आजाद साहब को ही क्यों कर रहे हैं हर वक्त टारगेट? एटलीस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन जिसने कांग्रेस स्टैंड की थी, जिसने कांग्रेस को यहाँ बनाया था कश्मीर में। ये बोलते हैं जी कांग्रेस ने आजाद साहब को क्या क्या दिया, वो उनकी अपनी काबिलियत पे, वो कैसे थे, लोग उनके पीछे पीछे चलते थे और आज भी चलते हैं। आज भी लोग जो ही आजाद साहब का नाम सुनते खाली तो भागे भागे आ जाते हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे बर्फ हो। -6 में आप लोगों ने देखा होगा लोलाब में कैसे लोग आए हैं, तो इनका तो वजूद ही नहीं। आप लोग सब गवाह हैं, इन्होंने कैसे एडिटिंग तक की थी, इससे ज्यादा क्या है इनको। बाकी ये हम लोग चाह रहे हैं NIA और CBI से हम लोग चाह रहे हैं गिव द प्रूविंग, इसका प्रूव करें एंड हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर ये इतने साफ सुथरे लोग हैं तो ये क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर हम लोगों ने इनको अननेसेसरली इल्जाम लगाए हैं तो इल्जाम नहीं। बगैर खलल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना सरकार की तरजीह। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात उठाए गए। चीफ सेक्रेटरी चिले कलान के तेवर इंतहाई सख्त, शबाना सर्दियों में इजाफा से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश। श्रीनगर में -5.5, पहलगाम में -6.2 और अवंतीपोरा में -7 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्द तरीन इलाके दर्ज। आइंदा 3 दिनों तक मौसम खुश्क, जबकि 26 दिसंबर को करगिल और वादी के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने और जंगजुआना हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड मुतहरिक। गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस साल जम्मू कश्मीर में अस्करी वाक़ात में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। जम्मू कश्मीर में अमन की सूरत हाल को बिगाड़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलविसीन को सज़ा दी जाएगी। नीति आनंद। सरहदी ज़िला कुपवारा के कुननपोरा इलाके में अब्दुलरशीद नामी शख्स दौरानी हिरासत गायब होने पर आज लाल चौक घंटाघर के सामने अवामी आवाज़ के लीडरान और कारकुनान ने ज़बरदस्त एहतजाज करके हुकाम से अपील की कि दौरानी हिरासत ये शख्स कैसे गायब हुआ, सारी मालूमात मंजर आम पर लानी होगी।
उन्होंने बोला हम इसको 3 बजे 4 बजे तक छोड़ देंगे। अब 8 दिन हो गए। अब जब फैमिली जा रही है आर्मी के पास, वो बोल रहे कि बंदा मिसिंग है, बंदा अंडरग्राउंड वर्कर था, बंदा मिलिटेंट था, ना उस पर कोई FIR है। ये जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। 90s का दौर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ मर्द भी आए हैं, आर्मी को जो लग रहा है चाहे आर्मी इसमें इन्वॉल्व हो, उनको सज़ा मिलेगी, हम लड़ेंगे, चाहे आर्मी हमें मारेगी भी। हम पता है हमें बहुत सारे एजेंसीज हमें मारने पे तुली हैं, लेकिन हम सच बोल के रहेंगे। इधर पूरे दुनिया को सच बताएंगे एक कश्मीरी के साथ कितना जुल्म आता हो रहा है, कैसे जुल्म कर रहे हैं। अगर इनको अरे यार उधर लड़ो बॉर्डर पे, यहाँ कश्मीर में क्या कर रहे हो? एक कश्मीरी, एक इनोसेंट लोगों को मार रहे हो। यही हिंदुस्तान है। वो RSS के कुछ कुत्ते जो यहाँ पे इनके साथ, मेरे को बहुत ज़्यादा फौज पे भरोसा था, नहीं लेकिन फौज में भी बहुत सारे ब्लैक शीप्स है, जो कुत्ते जो पलते हैं RSS के टुकड़ों पे। उनको हम बताना चाहेंगे कि वो दौर खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा। इधर दीवार बन के हम खड़े रहेंगे। अब ये क्लियर है। चीन में कोविड-19 के केसों में इजाफा के चलते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में जायज़ा मीटिंग। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतज़ामिया को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई अब भी ख़त्म नहीं हुई। कोविड के महफूज बर्ताव की लगातार पासदारी को अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। स्कूलों के बाद जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के लिए सरमाई तातील का ऐलान। कश्मीर के कॉलेजों में 27 दिसंबर से 14 फरवरी तक, जबकि जम्मू में 10 जनवरी तक कॉलेजों में छुट्टियां रहेगी। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर हिंदू चीन कशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात का 17वां दौर मुनक़िद। दोनों फरीक़ैन ने अबूरी तौर पर मगरबी सेक्टर में ज़मीनी सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सफारती ज़राए से बातचीत को बरकरार रखने और बकिया मसाइल के जल्द अज जल्द बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल पर काम जारी। बागची। जम्मू कश्मीर में इंसदाद मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में तेज़ी और फ़िज़ाई सलाहियतों में इजाफा के बाद मशरक़ी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में फ़िज़ाई सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए फ़िज़ाया के गोडा कमांडोज तैनात। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की धरअंदाजी। BSF ने फायरिंग करके नीचे गिरा दिया। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। चिले कलान की शदीद ठंड के बीच शुमाल व जनूब में बरकी रूह की आहुजाही जारी। मुतादिद इलाके कई रोज से गुफ अंधेरे में सार्फिन महकमा PDD के खिलाफ सरापा एहतजाज। और आखिर में ये खबर कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलात पर आलमी इदारा सेहत का इजहार तशवीश। सूरत हाल पर गहरी निगाह। टीकाकारी के अमल में चीन की मुकम्मल हिमायत। तर्जुमान। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।